In this video, I will discuss about the Rankine cycle component, and this is Rankine cycle is used in vapor power cycle. So first of all, I will first video I will discuss about the components of Rankine cycle. One is your boiler unit. Second one is your steam turbine unit, and third one is your condenser unit, and fourth one is your pump. So one by one I will discuss about the boiler unit, steam turbine unit, condenser unit, and pump. So first one is your boiler unit or steam generation unit. So in boiler we represent like this. The boiler, this is my boiler. Inside is your liquid water. In liquid, L for the liquid phase, and this line is coming from the pump, and this line goes to steam turbine. Now continuously we supplied the heat to the boiler. So boiler initially it is liquid substance. Initially we have a liquid water. Now supply the heat, and it converted into the specific volume of water increases. Specific volume of the water increases. Now again supply the heat. Continuously we are supplying the heat. Now it reaches up to the boiling point or at 100 degrees Celsius, 1 atmospheric pressure or 1.0325 bar. So 1 atmospheric pressure or at 100 degrees Celsius. At 100 degrees Celsius, the vaporizations of the water start. तो यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे वाटर आपका क्या हो जाएगा, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. वेपोराइजेशन स्टार्ट कंटिन्यूसली हम हीट सप्लाइड कर ही रहे हैं. We are supplying the heat continuously. Now after the vaporizations we get the wet steam. Wet steam is the combination of liquid plus vapor phase. L for the liquid and V for the vapor. So wet steam we cannot pass to the turbine. Now again we supply heat, then it converted into the dry सैचुरेटेड स्टीम. तो ड्राई सैचुरेटेड में भी कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन आपका लिक्विड रहेगा, लिक्विड प्लस वेपर का रहेगा. सम पार्ट लिक्विड का रहेगा, सम पार्ट लिक्विड ड्रॉप्स का रहेगा. तो इसीलिए हम इसको भी पास नहीं कर सकते टरबाइन में. नाउ अगेन आफ्टर कंटिन्यूअस हीटिंग इट सप्लाइड, इट कन्वर्टेड इनटू द superheated steam. The superheated steam follow the law of gases. It will works like a gas. तो यहाँ से हम लोग इसको पास करेंगे टरबाइन के अंदर. ये आपका टरबाइन में जाएगा, स्टीम टरबाइन के अंदर. तो सुपरहीटेड स्टीम की क्यों रिक्वायरमेंट है? सुपरहीटेड स्टीम की इसलिए रिक्वायरमेंट है, अगर जो वेट स्टीम हम लोग स्टीम में ट्रांसफर करेंगे, लिक्विड प्लस वेपर फेस, इट विल गो
into the turbine, then some water particle impact to the turbine blade and the pitting actions take place. So due to the pitting actions, the pinholes generated at the surface of the turbine, so it can damage to the turbine blade. Second situation arise होगी वाटर पार्टिकल से, वो आपका रिएक्शंस करेंगे टर्बाइन ब्लेड के मटेरियल से और वहां पर कोरोजन की सिचुएशन अराइज हो सकती है. So due to pitting actions and corrosion situation, and the efficiency of the Rankine cycle also reduces. That's why we use the superheated steam and it works like a gas. So completely यहाँ पर ड्राई और completely ड्राई superheated steam होगी जिसको हम पास करेंगे स्टीम टरबाइन से. अदरवाइज क्या होगा आपका, अगर जो कॉम्बिनेशन होगा लिक्विड प्लस वेपर का कॉम्बिनेशन होगा, सो तो पिटिंग एक्शंस टेक प्लेस होगा, पिन होल्स जनरेट होंगे, आपके टरबाइन ब्लेड्स की लाइफ रिड्यूस हो जाएगी और दूसरा हमारा एफिशिएंसी ड्रॉप होगी. एफिशिएंसी ड्रॉप होगी तो आपकी लाइफ साइकिल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. दूसरा ओवरऑल कॉस्ट जो है पावर प्लांट की हमारा वो इंक्रीज हो जाएगी. दैट्स वाई वी यूज द सुपरहीटेड स्टीम इन स्टीम टरबाइन. ठीक है. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द स्टीम टरबाइन. सेकेंड है हमारा पार्ट है स्टीम टरबाइन. तो स्टीम टरबाइन का जो सिंबल है वो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. स्टीम टरबाइन को आप देख लीजिए. तो ये मेरा जो टरबाइन का सिंबल है, यहाँ पर आपका स्टीम टरबाइन से कनेक्ट होती है साफ्ट. टरबाइन की साफ्ट है और साफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं हम जनरेटर से. जनरेटर के एरिया हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो टरबाइन का इनलेट, एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज माय इनलेट. यहां पर आपकी मिलेगी सुपर हीटेड स्टीम. ठीक है. सुपर हीटेड स्टीम क्यों हम लोग रख रहे हैं, इसका रीजन मैंने बताया. अगर जो हमारा वेट स्टीम होगा तो वहां वेट स्टीम क्या करेगी, एक कोरोजन की सिचुएशन अराइज कर सकती है. वाटर पार्टिकल बार बार इम्पैक्ट करेंगे, हैमरिंग एक्शन टेक प्लेस होगा, तो पिटिंग एक्शंस की वजह से आपका क्या होगा, पिन होल्स का जनरेशन होगा, जिससे कि आपके जो टरबाइन की ब्लेड्स हैं वो डैमेज इजीली हो जाएंगे और लाइफ साइकिल आपकी रिड्यूस हो जाएगी. सो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं सुपरहीटेड स्टीम. एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन यू विल गेट द लिक्विड प्लस वेपर और वेट स्टीम. वेट स्टीम और ये जो आपको जाएगी यहाँ से लाइन, ये आपकी जाएगी कंडेंसर में. इसके बाद कंडेंसर यूनिट हम किस लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि कंडेंसर के बाद है आपका पंप, और पंप केवल और केवल आपका लिक्विड सब्सटेंस को, द पंप कैन पंप द लिक्विड सब्सटेंस ओनली. इट कैन नॉट ट्रांसफर और द कंप्रेसर एट द प्लेस ऑफ पंप वी कैन यूज द कंप्रेसर फॉर टू फेज सब्सटेंस, बट इन रैनकाइन साइकिल वी आर यूजिंग पंप. सो पंप क्या करेगा, आपका सिंगल फेस को ट्रांसफर करता है और सिंगल फेस को पंप आउट करता है. दैट्स वाई इन बिटवीन द स्टीम टरबाइन और पंप वी यूज द कंडेंसर. तो कंडेंसर बेसिकली क्या करेगा, कंडेंसर आपका लिक्विड प्लस वेपर फेस को कंप्लीटली लिक्विड फेज में ट्रांसफर कर देगा, कन्वर्ट करेगा बाय रिमूविंग द हीट. तो दिस इज माई स्टीम टरबाइन एंड वी कंसीडर द रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक process. In this turbine the steam expand. Due to the expansion of the steam we get the turbine work done. ये turbine work done हमारा जनरेटर को ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग थर्ड जो कंपोनेंट है हमारा वो है कंडेंसर. कंडेंसर तो कंडेंसर में हमारा क्या होगा, कंडेंसर में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. कंडेंसर इज ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर. ठीक है. ये आपका कोल्ड लिक्विड, यहाँ से आपका कोल्ड लिक्विड सब्सटेंस यहाँ पर इनलेट हो रहा है और ये आउटलेट. तो यहाँ से आपका हीट का रिजेक्शन हो रहा QR एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो इनकमिंग लाइन है लिक्विड प्लस वेपर फेज में रहेगी और ये आपका हीट रिजेक्शन के थ्रू कंप्लीटली लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर देगा. यहाँ पर आपको लिक्विड फेज मिलेगी. एट द इनलेट ऑफ द कंडेंसर वी हैव लिक्विड प्लस वेपर फेज, बट एट द आउटलेट ऑफ द कंडेंसर वी हैव ओनली लिक्विड फेज.
तो ड्यू टू हीट रिजेक्शन, ये कैसा हो रहा है, हीट रिजेक्शन की वजह से हो रहा। तो यहाँ पर कंडेंसर इज ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। नाउ फोर्थ वन पार्ट है हमारा, फोर्थ वन इज योर पंप। हमारा पंप है, तो पंप को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरीके से। तो पंप में आपका ये इनलेट होगा, इधर इनलेट लाइन, इनलेट ये आपका आ रहा है फ्रॉम कंडेंसर, कंडेंसर से आएगा, और ये आपका फीड करेगा वाटर फीड को, ठीक है। तो ये आपका फीड करेगा, फीडिंग एक्शन होगा यहाँ पर। तो ये आपका होगा टू बॉयलर, बॉयलर को जाएगा। तो ये आपका पंप है। पंप को रन कराने के लिए आप पंप वर्क डन करेंगे, वर्क डन की रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज द लिक्विड फेज, दिस वन हियर इज ऑल्सो लिक्विड फेज। तो आपका पंप क्या करेगा, लिक्विड फेज, लिक्विड वाटर लाइन को आपको, ये जो वाटर वर्किंग सब्सटेंस लिक्विड फेज में है उसको बॉयलर में फीड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4 कंपोनेंट जो आपके यूज होते हैं रैनकाइन साइकिल में। सो रैनकाइन साइकिल, नाउ सेकेंड इज related to these are the component of the Rankine cycle. In second lecture I will discuss about the TS diagram of the Rankine cycle. Thank you.